Hello, friends. How are you all? I hope everyone is doing good. In our last class, we had just begun with the topic contingent and quasi contracts. I hope लास्ट लेक्चर आप सबको अच्छे से समझ आया होगा क्योंकि हमने बेसिकली डिस्कस की थी डिफिनिशन contingent contract होता क्या है and what are the essentials of contingent contract. Mainly, it was trying to say that what are those elements which would prove that a particular contract is contingent. ठीक है एंड उसमें एक कोलैटरल इवेंट जुड़ा हुआ है फिर हमने कोलैटरल इवेंट समझा था उसके साथ जुड़ी हुई हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कवर किए थे कि एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए आप सबको कि कॉन्टेंजेंट बेसिकली होता क्या है तो कॉन्टेंजेंट जब हम पढ़ रहे थे तो वन थिंग विच वी स्ट्रेस्ड अपॉन वाज दैट wherever and in any case if any contract is being done to do something or not to do something and which shall only be in effect, which shall only be carried out only when a particular event is happening or not happening. And that particular event is completely independent to the contract, it is collateral. That means there is no performance or any consideration involved for a promise. Okay? And that particular event is completely independent. It is not depending upon the contract. अगर वो इवेंट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए होगा और इसी बात पे हमने कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समराइज किया था पूरी डेफिनेशन समझने के बाद देन आई टोल्ड दिस थिंग दैट the rules regarding the enforcement shall be discussed in the further lectures because firstly it was very important to understand the meaning and what are the essentials of contract, this kind of contract, because people don't even understand what is the meaning of contingent. So it was really very necessary to understand what does that word say, what does that word interpret. If we try to interpret what does that word say, then एसेंशियल्स कवर करने के बाद आज हम रूल्स देखेंगे लेकिन उससे पहले मैं सोच रही थी कि आप लोगों को एक कंबाइंड डिस्टिंक्शन समझा दिया जाए बिटवीन कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट ठीक है सो before going to the rules, before understanding the rules, we'll be covering the difference between the contingent and wagering contract. So let's first start with the differentiation. Okay, now I'm not skipping this part. I'm not skipping the rules. I'll be covering it later. But since it was necessary to take up this topic earlier than that, so that is why I took this. Now, if I talk about the difference, what does it exactly mean? See, contingent contract I already told. Now, it's an important discussion being going on. So before starting the actual differences, let me first tell you that जो भी basis of difference इसमें दिए हुए हैं, it's necessary in the exam. If this particular question comes, then it would be very nice on your part if you quote the basis of differences because it would make the answer very effective, very pretty, I would say, in the eyes of examiner. Because the definition of a complete and self-sufficient answer in a case of differentiation is when you quote the basis of differences, when you mention what is the basis of difference. And besides the basis of difference, only you are differentiating between the two terms. तो अगर आप बेसिस कोट करोगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आंसर पे and maybe you get a chance to score full marks in that particular answer. So इससे आपके ही scores improve होंगे. That is why I am quoting. Basis of difference में like first difference which is being explained here is about the meaning, because whenever you try to differentiate between the two terms, what happens is the first thing you need to quote and which is like
Important also if you start your differentiation part with the introduction level. और इंट्रोडक्शन किससे कोरिलेट करता है? मीनिंग से। तो जब आप मीनिंग बताओगे उसके बाद आप बाकी टर्म्स डिस्कस करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे अब इसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस में एक पॉइंट आता है अनसर्टेन इवेंट। अगर आप फर्स्ट पॉइंट ही अनसर्टेन इवेंट लिख दोगे तो हो सकता है वो आंसर इतना सही ना लगे, भले ही पूरा आंसर आपका अच्छा हो, सही हो, बट इफ यू शफल द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस, जो भी डिफरेंस का बेसिस है, जो भी पॉइंट्स कोट करने थे बेसिस ऑफ डिफरेंस में, उसको आप सीक्वेंस उसका चेंज कर दोगे तो हो सकता है एग्जामिनर पे इतना इम्पैक्ट ना पड़े। तो कोशिश यही करिए कि पहला पॉइंट विच आई रिकमेंड इज शुड बी द मीनिंग, एंड देन यू मे शफल विद द बेसिस ऑफ डिफरेंस। मान लीजिए अनसर्टेन इवेंट आपको सेकंड पॉइंट रखना है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थर्ड पॉइंट रखना है, तो देयर इज नो सच प्रॉब्लम, बट फर्स्ट पॉइंट शुड बी द मीनिंग पार्ट। As we have already discussed in our last class, that contingent contract basically involves doing something or not doing something if a particular event is happening or not happening, if it is occurring or not occurring. And that event is collateral. There is no such performance, it's not related to, neither related to performance of a promise nor consideration for such promise, which I had discussed upon. पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए ये परफॉर्मेंस पहले हो जाए या पैसे एक्सचेंज हो जाए, अमाउंट मॉनेटरी कंसिडरेशन जैसे अमाउंट ही हो गया वो एक्सचेंज हो जाए उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो, तो ये कॉन्टिंजेंट में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि अगर रेन हो रही है तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करेगी, तो रेन जो इवेंट है वो कोलैटरल है, वो अनसर्टेन है, वो इंडिपेंडेंट है कॉन्ट्रैक्ट के। अगर रेन होगी तभी पेमेंट होगा, बट रेन का होना इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस, या वो कंसिडरेशन नहीं है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में कि रेन होगी तो कंसिडरेशन एक्सचेंज होंगे, तो वो कंसिडरेशन नहीं है, ना ही परफॉर्मेंस है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली क्या बोला जाता है? देयर इज एन अग्रीमेंट विच रिक्वायर्स अ प्रॉमिस टू बी गिवन। एक प्रॉमिस चाहिए होता है कि मनी दो या मनी के इक्विवेलेंट कोई चीज एक्सचेंज हो, अगर ये अनसर्टेन इवेंट होता है या नहीं होता है। तो वेजरिंग अग्रीमेंट मेनली स्ट्रेस किस पे करता है? मनी पे। या तो मनी एक्सचेंज हो या मनी के इक्विवेलेंट कोई चीज एक्सचेंज हो, अगर अनसर्टेन इवेंट होता है या नहीं होता है। नाउ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मे और मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हमने ये पढ़े थे कि उसमें क्या होता है, जिसमें कंसिडरेशन का बहुत रोल होता है प्रोमिसेस में दोनों एंड से। जैसे दोनों पार्टीज अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, दोनों के एंड से कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस आ जाएगा। यानी कि एक प्रॉमिस हो रहा है दूसरे प्रॉमिस के एक्सचेंज में। जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाते हो एंड शॉपकीपर, बहुत ही इजी एग्जांपल है, शॉपकीपर इज अग्रीइंग टू गिव यू द प्रोडक्ट इन एक्सचेंज ऑफ मनी, कि पहले आप अमाउंट पे करिए, उसके बदले में आपको उसी की वैल्यू की कोई भी चीज मिल जाएगी। You will be getting whatever you are requiring in that particular shop once if you make the payment. So that is reciprocal promise, where you exchange a promise in for another promise. ठीक है, तो एक प्रोडक्ट की वैल्यू पे आप पेमेंट करते हो, प्रोडक्ट के बदले में आप पेमेंट करते हो, दैट इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिस का होना ना होना डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रेसिप्रोकल प्रॉमिस में कंसिडरेशन का बहुत मेजर रोल नहीं है। अगर इवेंट हो रहा है तो हो सकता है कंसिडरेशन एक्सचेंज हो भी जाए, लेकिन कंसिडरेशन का पार्ट या परफॉर्मेंस बेसिकली यूज होते नहीं है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में। इसलिए बोला जाता है कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं।
But if I talk about the wagering agreement, then in that particular agreement reciprocal promise का होना ज़रूरी है, क्योंकि reciprocal promise में consideration के बदले में आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, कोई सर्विस मिल रही है। और वेजरिंग अग्रीमेंट की डेफिनेशन ही यही बोलती है, एक प्रॉमिस किया जाता है जिसके बदले में अमाउंट मनी या मनी के इक्विवेलेंट कोई चीज़ एक्सचेंज हो रही है, अगर ये इवेंट होता है या नहीं होता है। तो दैट इज़ वाई रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज एन इनहेरेंट पार्ट, it's an integral part of wagering contract. It cannot be excluded from that. But since if we are considering contingent contracts, then we can't say that particular reciprocal promises are there in that particular contract or not. They may or they may not occur. They may or they may not be made in contingent contract. क्योंकि उसमें हम कंसिडरेशन का हमारा मोटिव नहीं है कि हम प्रॉमिस को परफॉर्म करें या कंसिडरेशन एक्सचेंज करें। देन इफ आई टॉक अबाउट अनसर्टेन इवेंट, देन कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, इवेंट कोलैटरल होता है। इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता है। इवेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इट डज नॉट involve any consideration for the promise or performance of the promise. ये वर्ड आप जितना याद कर लें बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर समझना, बिकॉज कुछ भी नहीं है, बस यही दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में अनसर्टेन इवेंट होता है और कोलैटरल इवेंट होता है। कोलैटरल का मतलब समझ जाइए, आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। बट वेजरिंग में अनसर्टेन इवेंट कोर फैक्टर है। अनसर्टेन इवेंट, अब देखिए, when we were discussing essentials of contingent contract, there one point was being mentioned that contingent contracts may event is uncertain. So yes, I agree, and the institute is also giving you this thing that uncertain event is there in contingent contract, no doubt. It's unpredictable, you don't know whether that event is happening or it may occur or not occur. But in case of wagering contract, uncertain event is the core element. It's the main element. It's the main factor. उसके बिना वेजरिंग अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रॉमिस अगर हो रहा है किसी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए, जिसके बदले में पैसा एक्सचेंज होगा या उसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ एक्सचेंज होगी। जैसे आप शेयर मार्केट में बेटिंग कर लोगे, तो उसमें जैसे आप किसी पार्टी के साथ वेजरिंग अग्रीमेंट करते हो कि मैं आपको 1 लाख रुपीज़ दूंगा अगर आज निफ्टी इतने पॉइंट्स बढ़ता है, सेंसेक्स इतने पॉइंट्स बढ़ता है, या फिर आज अगर इस कंपनी का, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, HPCL है या फिर गेल है या रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इसका शेयर प्राइस अगर इतने से इतना बढ़ गया तो इतना अमाउंट मैं आपको पे करने वाला हूँ, तो वो वेजरिंग है, क्योंकि उसमें प्रॉमिस किया जा रहा है कि हम आपको अमाउंट पे करेंगे। स्पेसिफिकली प्रॉमिस अमाउंट पे करने का हो रहा है, जो कि डिपेंड कर रहा है अनसर्टेन इवेंट पे, क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ना गिरना दिस इज कंप्लीटली अनसर्टेन, इट फ्लक्चुएट्स अ लॉट। वो आप नहीं गेस कर सकते हो कि कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी कोर एलिमेंट होता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का। ना कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मनी का एक्सचेंज इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है कि मनी एक्सचेंज हो, क्योंकि इसमें वेजरिंग में क्या होता है, प्रॉमिस किया जाता है मनी पे करने का, या मनी के इक्विवेलेंट कोई प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई, मनी के वर्थ कोई चीज़ देना, तो वो प्रॉमिस किया जाता है। तो कॉन्टिंजेंट में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया जाता है कि मनी पे होगा अगर ये अनसर्टेन इवेंट हो रहा है, या मनीज वर्थ कोई चीज़ दी जाएगी दूसरी पार्टी को। लेकिन वेजरिंग जो है वो कॉन्टिंजेंट होगा। एक तरह से ये समझ लीजिए कि वेजरिंग एक पार्ट है कॉन्टिंजेंट का। कॉन्टिंजेंट एक बड़ा टर्म है, एक वाइडर टर्म है, वेजरिंग उसका पार्ट है, क्योंकि वेजरिंग में कहीं ना कहीं अनसर्टेन इवेंट आता है। वेजरिंग में प्रॉमिस होता है मनी पे करने का या उसकी इक्विवेलेंट मनी वर्थ पे करने का, देने का। तो वेजरिंग उसका हिस्सा हो सकता है
कॉन्टिंजेंट का एक पार्ट हो सकता है, बट कॉन्टिंजेंट कैन इट मे नॉट बी वेजरिंग, कॉन्टिंजेंट मे नॉट बी वेजरिंग, लेकिन वेजरिंग इज ऑलवेज कॉन्टिंजेंट। उसमें अनसर्टेन एलिमेंट भी आता है, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते ही होते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का इंटरेस्ट रहता है सब्जेक्ट मैटर में। नाउ इफ अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग डन दैट द रेन विल अकर और नॉट अकर। अब रेन को हटाते हैं, अच्छा चलिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। इंश्योरेंस में जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली एक पर्सन ने, एंड उसमें उसका इंटरेस्ट रहेगा, ही इज पेइंग द प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट द इंश्योरेंस ऑफ हिज लाइफ, एंड हिज इंटरेस्ट वुड बी देयर इन द क्लेम पार्ट। जो क्लेम सेटल करती है इंश्योरेंस कंपनी जब किसी पर्सन की जिसने लाइफ इंश्योरेंस लिया उसकी डेथ के बाद, तो उसमें उसका एक इंटरेस्ट रहेगा, उसकी फैमिली का इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, उस क्लेम में, क्योंकि उसने उसके लिए प्रीमियम भरा है। लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में नहीं होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर जो भी मेन एलिमेंट होता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें भले ही कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का इंटरेस्ट हो, लेकिन वेजरिंग में इतना नहीं होता है सब्जेक्ट मैटर में। तो अगर बात की जाए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज का, तो एक तरह से ये समझिए कि वेजरिंग इज काइंड ऑफ गैम्बलिंग, इट इज काइंड ऑफ गैम्बलिंग। तो उसमें अगर बेटिंग हो रही है, पार्टीज अपना अपना स्टेक लगा भी रही हैं, बट तब भी सब्जेक्ट मैटर में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। इतना क्या मतलब, जैसे जिस हिसाब से इसमें लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन में, ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट होता ही नहीं है। तो अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्रॉसवर्ड पजल दिया गया न्यूज़पेपर में, और उसमें स्टेट कर दिया गया कि whosoever gives the correct solution of this puzzle, he or she would be given the prize, और ये प्राइज कोड कर दिया। तो वो एक तरह का चांस का गेम है। सब्जेक्ट मैटर पे पार्टी का, यानी कि आज मैं अगर न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करके दे भी रही हूँ, तो मेरे माइंड में ये इंटरेस्ट नहीं रहेगा कि मुझे कुछ मिल जाए इसके बदले में, क्योंकि ये पूरी तरह से गेम ऑफ चांस है, एक तरह से लॉटरी है। तो अगर मैं जीत जाती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, नहीं भी जीतती हूँ तो उसमें मेरा कोई लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन लक। If I win, then I'll be definitely given the prize. But still, if I lose, then also I will not have any interest in such kind of contract. This is what this point is trying to say, that interest of contracting parties in the subject matter नहीं होता है वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन कॉन्टिंजेंट में होता है, जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मैंने एग्जाम्पल दिया। Now, if I talk about doctrine of mutuality of lose and gain, contingent contract is not based on lose and gain wali doctrine, because I have already told you this thing, that it is involving collateral event. Collateral event neither talks about consideration for the promise nor it talks about performance for the promise. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही है, या ये माइंडसेट नहीं है कि इसके बदले में ये कंसिडरेशन दिया जाएगा या इसके बदले में ये परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि इवेंट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अगर इवेंट हो रहा है तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए। तो कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में गेन या लूज की डॉक्ट्रीन, या कह सकते हैं आप लोग पूरा जो सिनेरियो है वो वर्क नहीं करता है, बट वेजरिंग में कंप्लीटली लूजिंग गेनिंग ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज ये एक तरह का गैम्बलिंग भी हो सकता है, लॉटरी है, जैसे लॉटरी आपने विन करी नहीं की, आपने उसके बदले में कोई डिपॉजिट किया, तो ये सब कंप्लीटली ये सब चीज़ें जो है वेजरिंग में कवर होंगी। लेकिन अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है, वेजरिंग अग्रीमेंट हमेशा से वॉइड माना जाता है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, इवेंट अनसर्टेन भली है, अगर वो
हो भी रहा है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए, तो उसका इफेक्ट वैलिड होगा, बट वेजरिंग इज ऑलवेज इनवैलिड। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही नहीं है, वो वेजरिंग अग्रीमेंट ही रह जाता है। तो वेजरिंग अग्रीमेंट को यही बोला गया है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड। अग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड। और हमने वेजरिंग के ऊपर इससे पहले अपनी क्लासेस कवर भी करी हैं, जिसमें मैंने वेजरिंग के बारे में आपको बताया भी है। इलीगल नहीं होते हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स, लेकिन वॉइड होते हैं, ठीक है। गैम्बलिंग का गेम हो रहा है, लॉटरी का गेम हो रहा है, तो ये सब चीज़ें कंप्लीटली इनवैलिड हैं, इन्फोर्सेबल नहीं है ये, ठीक है। अगर आप कोर्ट में जाएंगे इन्फोर्स कराने, तो वो उसके चांसेस बहुत मिनिमम है कि वो आप इन्फोर्स करा पाएँ, इसलिए इनको वॉइड बोला गया है। अच्छा, जैसे इसमें मैंने क्रॉसवर्ड पजल का एग्जाम्पल दिया, या लॉटरी का एग्जाम्पल दिया, गैम्बलिंग का एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसके अलावा जैसे शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कि जैसे शेयर्स परचेज कर रहे हो आप, शेयर्स सेल कर रहे हो, कि ये पर्टिकुलर शेयर्स की डिलीवरी हो रही है, तो वो वेजरिंग में नहीं आएंगे, वो वेजरिंग में नहीं आएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर प्राइस डिफरेंस सेटल हो रहा है, इंटेंशन ऐसा है कि प्राइस डिफरेंस सेटल होना है, तब ट्रांजैक्शन वेजर में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, लाइक इफ आई do an agreement with another person that if today, as per today's stock market highlights, if the share price of Reliance Industries goes up by 10% tomorrow, then I'll be paying you the balance amount, जितने amount से share price बढ़ा, तो I'll be paying that particular amount to the party with whom I am agreeing, या जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो मैं बैलेंस अमाउंट पे करूँगी। या वो पार्टी अगर मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस 15-20% बढ़ गया या गिर गया, तो मैं बैलेंस अमाउंट पे करूँगा, मैं जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो पे करूँगा जितने अमाउंट से बढ़ा है। तो ये जो डिफरेंसेस सेटल होते हैं वो वेजर में कवर होते हैं। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई शेयर किसी कंपनी का खरीद रहे हो, सेल कर रहे हो, उसके बदले में प्राइस पे हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो वेजरिंग में नहीं आएंगे। डिफरेंसेस अगर सेटल हो रहे हैं, प्राइस डिफरेंसेस, तो वो वेजरिंग में कवर हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिंजेंट एंड वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन लगा हो, प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिएगा, ताकि मैं इसको और क्लैरिफाई कर पाऊँ। अब इसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे रूल्स रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो ये बोलते हैं कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे कोर्ट में इन्फोर्स करा सकते हो, क्योंकि आखिरकार you people have understood the definition, you have understood the essentials, but when it comes to enforcement, like if you wish to take any action in case of a contingent contract, or if you want to sue a party in the court of law, then what to do in that case, some rules have been prescribed by the Indian Contract Act, which we are going to study. Now if I talk about in first point, enforcement of contracts contingent on an event happening, तो ये क्या बोलते हैं, where a contract identifies happening of a future contingent event, contract cannot be enforced until and unless that event happens. If the happening becomes impossible, contingent contract is void. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा आइडेंटिफाई हो रहा है जिसमें कोई इवेंट की हैपनिंग होनी है, कोई इवेंट का अकरेंस होना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता है, जब तक वो इवेंट हो नहीं जाता है। अब एनफोर्स मीन्स एनफोर्स नहीं करा सकते हैं का मतलब क्या हुआ, यानी कि लॉ में, लॉ के टर्म्स में, कोर्ट में उसको प्रेजेंट करना, ठीक है। कि अब जैसे मान लीजिए कोई सूट फाइल करना है,
तो उस केस में कोर्ट में पर्टिकुलरली प्रेजेंट होना, ठीक है, अपना केस रखना उनके सामने, तो वो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं एनफोर्समेंट में, ठीक है। जैसे कि एक बॉडी जो कि सैंक्शन होती है, कोर्ट एक तरह से बॉडी है जो कि लोकल, स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट ने सैंक्शन करी हुई है कि आप लॉज इन्फोर्स करिए। जैसे पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे या लोकल सिटी लेवल पर भी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होते हैं, जिन्हें अथॉरिटी मिलती है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि जो भी आप रूल्स बनाएंगे इस पर्टिकुलर सिटी को लेके, स्टेट को लेके, लोग उसे ओबे करेंगे, और जो भी ब्रेक करेगा उसे, तो आपके पास अगर कोई आता भी है एक्शन पर्टिकुलरली किसी के अगेंस्ट में लेने के लिए, तो आप वो सब चीज़ें कंसिडर करके एक करेक्ट जजमेंट निकालोगे, ताकि बाद में लोग उस पर्टिकुलर लॉ को ब्रेक ना कर पाए। तो दिस इज व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एनफोर्समेंट, यानी कि लॉज बनाना, और जो उसे फॉलो ना करे, ओबे ना करे, उसके खिलाफ एक्शन लेना, उसको पीनलाइज करना या फाइन करना, ताकि बाद में वो उसे ओबे करे अच्छे से। तो एक तरह से ये इंश्योर करना कि सारे लॉज जितने भी बनाए गए हैं पर्टिकुलर स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, तो वो ओबे हो रहे हैं, दैट इज लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है। अब अगर इसमें हम बात करें इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, तो ये बोला गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसा इवेंट है जिसका होना है, ठीक है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि ये इवेंट हो जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हम इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं जब तक वो इवेंट नहीं हो रहा है। अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया कि अब तो अकर ही नहीं हो सकता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी को हम एक अमाउंट पे करेंगे अगर बी ने सी से शादी कर ली, तो अब इसमें इवेंट कौन सा हैपनिंग वाला है? बी सी से शादी करे, तब जाके ए बी को पेमेंट करेगा। तो तभी ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है जब बी सी से मैरिज कर ले, ठीक है, नहीं तो ये इन्फोर्स नहीं हो सकता है। अब अगर सी की डेथ हो जाती है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इवेंट ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसमें सेक्शन 32 है, ये पर्टिकुलरली ये क्या बोलता है, वेयर अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स, इट कैनॉट बी enforced unless that event happens। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज को करने के लिए या ना करने के लिए किया जाता है जब कोई अनसर्टेन इवेंट, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, वो इवेंट हो रहा है, तो वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हम लॉ के टर्म्स में इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो इवेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। एक तरह से उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को ओबे नहीं करवा सकते हैं लॉ के टर्म्स में जब तक कि वो इवेंट नहीं हो रहा है। तो दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ट्राइंग टू से, एनफोर्स, है ना, एक तरह से ले डाउन करना, सैंक्शन करना, अप्रूव करना। तो ये हम कह सकते हैं एनफोर्सिंग के अलग अलग वर्ड्स साथ में यूज हो सकते हैं जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट एनफोर्समेंट से मिलता जुलता है ना। कोई ऐसी सिचुएशन जो कि हम एक्सेप्ट कराना चाहें, ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं, तो ट्रैफिक रूल्स अगर ओबे नहीं होते हैं तो चालान कट जाता है। आजकल तो ऑनलाइन चालान्स सर्कुलेट होते हैं, ई चालान्स, कि आपने अगर ये पर्टिकुलर रेड लाइट पे ट्रैफिक रूल्स आपने फॉलो नहीं किए, ब्रेक करें, तो आपको ये चालान तुरंत आपके मेल पे आ जाएगा और आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्फोर्समेंट के दायरे में आती हैं। एक तरह से कोर्ट की बात नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट की बात करेंगे कि वो ऐसे रूल्स ले डाउन करते हैं कि उसे फॉलो करें, और ताकि वो रूल्स जो बनाए जाएं लोग उसे फॉलो करें, ओबे करें, जो नहीं फॉलो करे उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए।
तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता भी है, अब जैसे यही मैरिज वाला ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब अगर इसमें सी की डेथ हो गई तो फिर कोई भी पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया। अब ए और बी अगर कोर्ट जाते भी हैं स्यूट फाइल करने के लिए, ए बी के ऊपर कर रहा है या बी ए के ऊपर कर रहा है, तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं करेगी क्योंकि इवेंट ही इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन अगर सी अगर जिंदा है, ठीक है, शादी हो जाती है, उसके बाद अगर मान लीजिए ए कोई पेमेंट जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये पेमेंट हम बी को करेंगे, एंड ही फेल्स, ही denies to make the payment to B, then in that case B has the full right to contact the court और वहाँ जाके वो अपनी बात रख के कि मैंने ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरे को अमाउंट नहीं मिला है, रिसीव नहीं हुआ है, तो उस केस में कोर्ट में जाके ए के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है आराम से, बहुत अच्छे से इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, ये मतलब हुआ, ये इसका दूसरा सीन हुआ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। अगर सी की डेथ नहीं होती है, तो सी की डेथ नहीं होती है तो ए उस केस में अगर पेमेंट नहीं कर रहा है बी को मैरिज के बाद, तो बी कोर्ट में जाके ए के खिलाफ एक्शन ले सकता है। अब बी पॉइंट क्या बोलता है? बी पॉइंट ये बोलता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिंजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग। अब ये इसका उल्टा है, ए पॉइंट का उल्टा है। ठीक है, क्या बोलता है? अगर कोई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, वो बेसिकली तब हो रहा है जब कोई इवेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे इवेंट का होना, उसके बाद कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट होना, और उसके बाद ये बोलना कि ये एनफोर्स तभी होगा जब ये इवेंट होगा, तो वो वैलिड है। लेकिन अब सेकंड पॉइंट ये बोलता है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स हो सकता है जब पर्टिकुलरली वो इवेंट पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाए। अगर कोई कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है किसी चीज़ को करने के लिए या ना करने के लिए, जब कोई अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो तभी एनफोर्स हो सकता है जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे पी अग्री कर रहा है क्यू को हम इतना अमाउंट पे करेंगे, अगर ये शिप नहीं वापस आई तो शिप सिंक हो गई, तो अब कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल तभी होगा जब शिप सिंक हो जाए, शिप वापस ही ना आ पाए। ठीक है, तो अब इस केस में ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल तभी होगा। अब पी अगर अमाउंट पे नहीं करता है क्यू को, मान लीजिए शिप सिंक हो गई और अमाउंट भी नहीं पे कर रहा है, तो क्यू उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है कोर्ट में, एनफोर्स करा सकता है कॉन्ट्रैक्ट, ये बोल के कि शिप तो सिंक हो गई एंड आई डिडंट रिसीव एनी पेमेंट, पी इज डिनाइंग टू मेक द पेमेंट टू मी। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर ए अग्री कर रहा है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने के लिए बी को, इफ अ सर्टेन शिप इज नॉट रिटर्निंग, बट इफ द शिप रिटर्न्स बैक, in that case the contract becomes void, because जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो इस शर्त पे हुआ था कि इवेंट हैपन ही नहीं होगा, इवेंट इम्पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि शिप रिटर्न ही नहीं करेगी। और शिप अगर रिटर्न कर जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो फिर उल्टा पड़ जाएगा ना, तो फिर उसे हम कैसे एनफोर्स करा पाएंगे? उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाए। दैट इज व्हाट बी पॉइंट इज ट्राइंग टू से। ए और बी पॉइंट्स दोनों आप सबको समझ आए? क्या बोलना चाह रहा है हमारा ये सेक्शन, क्या बोलना चाह रहा है? एनफोर्समेंट के बारे में बात कर रहा है, इवेंट अगर हैपन कर रहा है या नहीं हैपन कर रहा है। मान लीजिए कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर ये इवेंट होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स हो सकता है जब वो इवेंट हो। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दो पार्टीज में, कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा जब ये इवेंट पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाए या इवेंट हो ही नहीं पाए, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्स होगा जब वो इवेंट हो ही ना पाए, इम्पॉसिबल हो जाए, अदरवाइज दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। दीज आर द 2 पॉइंट्स, रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट के फर्स्ट 2 पॉइंट्स आएंगे।
इसके बाद के पॉइंट्स अब मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि ऐसे इफ आई टेक अप ऑल द पॉइंट्स इन वन गो देन यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड एंड उसके बाद कंफ्यूजन्स क्रिएट भी होंगे, प्लस इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिवाइज इन वन गो। इसीलिए पहले 2 पॉइंट्स आप लोग रिवाइज करिएगा और मैंने डिफ्रेंसिएशन भी कवर कर लिया है। बाकी के सी पॉइंट से लेके एफ पॉइंट तक 4 पॉइंट्स जो और बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे एंड जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो भी ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसके बाद हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share the video and subscribe my channel. Also press the bell icon for latest updates. मेरा इंस्टाग्राम पेज सी ज्योति ट्यूटोरियल्स के नाम से है, उसे ज़रूर फॉलो करें। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजें ताकि मैं उसे रिजॉल्व करूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपने बाकी रूल्स कवर करेंगे एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।